صوبوں کو متاثرہ علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ہدایت۔ وزیر اعظم عمران خان کا کورونا سے متاثرہ مریضوں کے استعمال میں آنے والی چند ادویات اور انجیکشن کی دستیابی میں مشکلات کا نوٹس۔ چیئرمین NDMA کو مطلوبہ ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ عوامی نمائندے اپنے علاقوں کے ہسپتالوں میں کووڈ سہولیات کا جائزہ لیں، وزیر اعظم عمران خان۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی پر کام شروع۔ NCOC کے اجلاس میں ٹریسنگ، ٹریکنگ اور ٹیسٹنگ اور کوارنٹائن حکمت عملی کے تحت 20 شہروں میں وائرس کی نشاندہی۔ اسلام آباد کے علاقے G92 اور G93 کراچی کمپنی سیل، I8 I10 غوری ٹاؤن، بھارا کہوت G6 اور G7 کی مانیٹرنگ۔ لاہور کے متاثرہ علاقے رات 12 بجے سے سیل کرنے کا فیصلہ۔ مزنگ، گلبرگ، والٹ سٹی، کینٹ، شاہدرہ، نشتر ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن سیل کیے جانے والے علاقوں میں شامل۔ متاثرہ علاقے 2 ہفتے بند رہیں گے۔ میڈیکل سٹورز اور کھانے پینے کی دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت۔ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی صدارت میں صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس۔ ماسک نہ پہننے پر جرمانے عائد کرنے کا فیصلہ۔ ملک میں کرونا کیسز کے پھیلاؤ میں تیزی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 5248 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ مزید 97 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ متاثرین کی تعداد 1,44,478 تک پہنچ گئی۔ مجموعی طور پر 2729 اموات، 53,721 صحت یاب۔ کورونا وائرس 180 سے زائد ممالک میں پھیلا۔ خواجہ آصف کی تقریر سے لگتا ہے کہ کورونا عمران خان کی وجہ سے آیا۔ اپوزیشن کھل کر بتائے کہ اس کی حکمت عملی کیا ہے۔ اپوزیشن کے سر پر عمران خان سوار ہیں۔ خواجہ صاحب بیرون ملک جائیداد رکھنے اور باہر جا کر علاج کرانے والوں کی تقلید کرنا چھوڑ دیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ پنجاب کا 22 کھرب 40 ارب سے زائد کا بجٹ صوبائی اسمبلی میں پیش۔ 56 ارب روپے کے ٹیکس ریلیف پیکج کا اعلان۔ ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے 3 کھرب 73 ارب، تعلیم کے لیے 3 کھرب 91 ارب اور صحت کے لیے 2 کھرب 84 ارب روپے مختص۔ صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع وقت کی بجٹ تقریر۔ کشمیر کی تقسیم کو کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ جتنا کشمیری آج بھارت سے متنفر ہیں اتنا پچھلی 7 دہائیوں میں نہیں تھا۔ بھارت میں مسلمانوں پر مظالم سے پوری دنیا آگاہ ہے۔ بھارت کے نیپال اور دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ سرحدی تنازعات جاری ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو۔ بھارت کا سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بننے کے لیے جوڑ توڑ۔ کیا دنیا سیفران ٹیررزم اور ہندو دہشت گردی کو نظر انداز کر دے گی؟ بھارت کی 9 لاکھ سے زائد فوج مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ ایسے میں جنونی اور فیشسٹ ہندو ریاست کو سلامتی کونسل کا رکن بنانا عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرناک ہوگا۔ علی گیلانی، اشرف صحرائی اور مسرت عالم بٹ کشمیر پر بھارت کے جابرانہ قبضے کے خلاف مزاحمت کی علامت اور روشنی کے مینار۔ ہر آزمائش اور مشکل میں آزادی کا پرچم سربلند رکھا۔ کشمیر کے یہ عظیم رہنما جرأت، بہادری اور بے باکی کے باعث عوام کے دلوں میں بستے ہیں۔ سری نگر میں صحافیوں کے گروپ کا سروے۔ دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 80,17,000 سے تجاوز کر گئی۔
4,36,000 हलाक, 41,40,000 अफराद सेहतियाब। अमरीका में 21,62,000 अफराद मुतासर, 1,17,853 से जायद हलाकतें। ब्राजील में हलाकतें 43 और बरतानिया में 42,000 से तजावुज कर गईं। भारत में मुतासर अफराद की तादाद 3,33,000 हो गई, हलाकतें 10,000 के करीब पहुंच गईं। बारह अजला में टिड्डी दल का सफाया, 40 अजला में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी। 6,800 हेक्टेयर रकबे पर अद्वियात का स्प्रे। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,12,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का पहला ऑनलाइन बॉक्सिंग टूर्नामेंट शुरू। 7 रोजा इवेंट में मुल्क भर से बॉक्सर्स शरीक। टूर्नामेंट में 3 कैटेगरीज के मुकाबले शामिल। फातिह खिलाड़ियों का ऐलान बॉक्सिंग फेडरेशन के तैनात करदा रेफरीज और ऑफिशियल्स करेंगे। और जर्मन और स्पेनिश फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। बेंसेगा में ऑक्सबर्ग ने मेंस को शिकस्त दी। शाल्के और लेवरकुसेन के दरमियान मुकाबला बराबर। मैचेस देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। स्पेनिश लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने इबार को हरा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाज़िया कमल। बुलेटिन का आगाज हो गया है हेडलाइन से। एक ब्रेक के बाद खबरों की तफसील। किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ ज़ोन 4G। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेरे इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौरा जदीद के तकाजों के मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तियाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। Pakistan's first financial dairy. Covers investment like no one else. Business Recorder. Investments building block. वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमें मुतासरा इलाकों में टिड्डी दल के खात्मे के लिए भरपूर और मौसर ऑपरेशन कर रही हैं। तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारों को हिदायत दी जा चुकी हैं कि टिड्डी दल के हमले की इत्तला पर तमाम दस्तियाब मशीनरी को मुतहर्रिक करके बर वक्त टिड्डी दल को तल्फ करें। काश्तकार हजरात से गुजारिश है कि टिड्डी दल के हमले की सूरत में हुकूमती टीमों के पहुँचने तक रिवायती तरीकों से टिड्डी को फसलों और बागात से दूर भगाएं। टिड्डी दल के हमले से कबल अपनी फसलों के इर्द गिर्द एहतियाती तौर पर प्रोफेनोफास का स्प्रे करें। इज्तिमाई तौर पर भी मुतासिरा इलाकों में अपनी मदद आप के तहत ट्रैक्टर और बड़े स्प्रेयर्स तैयार रखें और टिड्डी के हमले की सूरत में लिम्डा का स्प्रे करें। बालिग टिड्डी के हमले के बाद बिला ताखीर मुतासरा जमीन में हल चलाकर हर सूरत अंडे तल्फ करें। गैर आबाद और सहराई इलाकों में टिड्डी दल का गैर मामूली झुंड देखने पर हवाई स्प्रे के लिए NLCC से फौरन राब्ता करें। टिड्डी दल की मौजूदगी की इत्तला देने या मुताल्लिका मालूमात के हुसूल के लिए NLCC के हेल्पलाइन नंबर्स पर राब्ता करें। अशात से ऑनलाइन तक इस्लामी दुनिया की अव्वलीन कारोबारी खबरें, हक़ाइक़ पर मबनी बेलाग तज्ज़िये और तबसरे सिर्फ एक क्लिक पर। डेली बिजनेस रिकॉर्डर,
कारोबारी दुनिया की पहली तरजीह। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से मुतासरा मरीजों के इस्तेमाल में आने वाली चंद अद्वियात और इंजेक्शंस की दस्तयाबी में मुश्किलात का नोटिस लेते हुए चेयरमैन NGMA को हिदायत की है कि इस अमर को यकीनी बनाया जाए कि मतलूबा अद्वियात और इंजेक्शंस बआसानी मुयस्सर हों। इस्लामाबाद में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हिफाजती इक़दाम की बदौलत कोरोना के फैलाव को मौसर तरीके से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब तक के तखमीनों के मुताबिक तमाम मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ताहम इस हवाले से अवाम का ताउन हुकूमती कोशिशों को कामयाब बनाने में अहम किरदार का हामिल है। वज़ीर आज़म ने इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया कि मुल्क भर में कोरोना से मुतालिक हिफाजती लिबास और पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स के तमाम ज़रूरियात अहसन तरीके से पूरी की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने अवामी नुमाइंदों को हिदायत की कि वो अपने इलाकों में इंतजामिया की मदद से न सिर्फ अस्पतालों में कोविड सहूलियात का जायजा लें, बल्कि अपने हलकों के अवाम को हिफाजती इक़दाम से भी आगाह करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबों को मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर मरबूत इक़दाम किए जाएँ ताकि आइंदा मुश्किल हफ्तों के दौरान हिफाजती इक़दाम और मुआशी सरगर्मियों में तवाज़ुन रखा जा सके। इजलास में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल, आइंदा चंद दिनों के तखमीनों और सूरत हाल से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर भी गौर किया गया। सूबों में कोरोना मरीजों के लिए मौजूद बेड्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और सहूलियात की मौजूदा सूरत हाल और इसमें इजाफे के लिए किए जाने वाले इक़दाम का जायजा लिया गया। इजलास को ये बताया गया कि इस वक्त मुल्क में कोरोना टेस्ट करने वाली 107 लेबॉर्ट्रीज हैं और यौमिया 25,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। इजलास को यह भी बताया गया कि मुल्क में वेंटिलेटर्स की तादाद को 700 से बढ़ाकर 4,800 कर दिया गया है। इनमें मजीद 1,600 का इजाफा बहुत जल्द हो जाएगा। मुल्क में N95 मास्क और वेंटिलेटर्स मकामी तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। इजलास को यह भी बताया गया कि जुलाई तक मुख्तलिफ अस्पतालों में 2,000 कोविड बेड्स का इजाफा कर दिया जाएगा। कोरोना से मुतासर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से इजलास को बताया गया कि मुल्क के 20 बड़े शहरों में उन मकामात की निशानदही कर दी गई है जहां कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद ज्यादा है और जहां सूबाई हुकूमतों और जिले इंतजामिया की जानिब से इंतजामी इक़दाम की जरूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना था। इस्लामाबाद में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत की कि वो हुकूमती फैसले के समरात आवाम तक पहुंचाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब करें। अशियाए ज़रूरिया में मिलावट के हवाले से वज़ीर आज़म का कहना था कि खाने पीने की अशिया में मिलावट हमारे बच्चों, बूढ़ों और कौम की सेहत की खराबी का बाइस बन रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में मिलावट की रोकथाम पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिससे ये मसला ज्यादा गंभीर हुआ है। उन्होंने कहा कि खालिस अशिया का मुयस्सर आना गुड गवर्नेंस की अक्कासी करता है, लिहाजा इस मामले पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म ने नेशनल प्राइस कंट्रोल कमेटी को हिदायत की कि मुल्क भर में गंदम की वाफर दस्तयाबी के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएं और अवाम को मुनासिब कीमत पर आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चीफ सेक्रेटरीज ने वज़ीर आज़म को पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी के फवायद आम आदमी तक पहुंचाने के हवाले से इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को अशियाए ज़रूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मिलावट के खिलाफ इंतजामी इक़दाम पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि गंदम की बैन सूबाई नकलो हमल की इजाज़त देने के हुकूमती फैसले के मुस्बत नताइज आ रहे हैं, ताहम आटे की कीमतों में मज़ीद कमी के हवाले से इक़दाम जारी हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि कराची में PIA तैयारा हादसे की शफाफ तहकीकात से मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचा जा सकता है।
تانحے کے شہداء کے لواحقین سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ وہ غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور ان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ صدر نے کہا کہ ورثاء کی جانب سے شفاف انکوائری اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکثر ورثاء نے PIA اور حکومت کے اقدامات کو سراہا ہے، مگر بعض نے نظام کی خرابیوں، حکومت اور میڈیا کے کردار کے بارے میں شکایات کی۔ ورثاء کا کہنا تھا کہ تذبذب اور حجام کی وجہ سے انہیں زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر نے قیمتی جانوں کے نقصان پر ورثاء کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور دعا کی کہ اللہ تمام مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کنٹرول نے ٹریکنگ، ٹیسٹنگ اور کوارنٹائن کی حکمت عملی کے تحت پاکستان کے 20 شہروں کی نشاندہی کی ہے جہاں کرونا وائرس پھیل رہا ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کے اعلان پر NCOC نے وبا کے پھیلاؤ والے مقامات سے متعلق صوبوں سے اعداد و شمار شیئر کیے ہیں۔ NCOC کے مطابق اسلام آباد کے علاقے G92 اور G93 کراچی کمپنی کو وائرس کے 300 سے زائد کیسز ہونے کے باعث سیل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے ان علاقوں کی مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے جہاں کورونا وائرس پھیلنے کے خدشات ہیں اور انہیں سیل کیا جا سکتا ہے۔ ان علاقوں میں I8, I10, غوری ٹاؤن، بھاراکو، G6 اور G7 شامل ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کنٹرول نے TTQ حکمت عملی کے تحت کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور اور راولپنڈی سمیت 20 شہروں میں نشاندہی کے بعد ضروری حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ NCOC کے مطابق اضافی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مجموعی طور پر آکسیجن کے ساتھ 2150 اضافی بیڈز جولائی کے آخر تک فعال کر دیے جائیں گے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے لاہور کے کرونا سے شدید متاثر ہونے والے علاقوں مزنگ، گلبرگ، وال سٹی، کینٹ، شاہدرہ، نشتر ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن میں رات 12 بجے سے آئندہ 2 ہفتوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نوید حیات۔ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کورونا سے شدید متاثرہ علاقوں کو سیل کرنے کے فیصلے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ان علاقوں میں لاک ڈاؤن کے دوران میڈیکل سٹورز اور کھانے پینے کی دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت ہوگی۔ جن علاقوں میں سب سے زیادہ انسیڈنٹس ہے ان کے لیے ایک ڈفرینٹ تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ کل 12 بجے کے بعد یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو بہت حد تک بند کر دیا جائے گا۔ کچھ علاقے شاہدرہ کے ہیں، ہماری وال سٹی کے کچھ علاقے ہیں، مزنگ، شاد باغ، ہربنس پورہ، گلبرگ کے کچھ علاقے ہیں، کچھ علاقے کینٹ کے ہیں، نشتر ٹاؤن تقریباً سارا ہی، علامہ اقبال ٹاؤن میں کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جن میں پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، ان کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے لاہور میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کورونا کے وبا کے باعث ملکی معیشت کو درپیش مشکلات کے ازالے کے لیے جامع اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں تجویز کردہ اقدامات سے کاروبار میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور ملکی معیشت میں بہتری آئے گی۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے تمام حکومتی وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں وبا کے تدارک اور مریضوں کے علاج معالجے کے لیے 25 ارب روپے کی حتی رقم فراہم کی جا چکی ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے مزید وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فصلوں کو ٹڈی دل سے بچانے کے لیے بھی حکومت نے فوری فنڈز فراہم کیے جس سے کسانوں کے نقصان کو کم سے کم رکھنے میں مدد ملی۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ساجد اختر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر مخصوص علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے لائحہ عمل کی منظوری دی گئی۔ پشاور میں صوبائی ٹاسک فورس برائے انسداد کورونا کے اجلاس میں SOPs پر عمل درآمد کی صورتحال کا جائزہ دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کو SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جن مارکیٹوں میں SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا
ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس وقت سرکاری سطح پر کورونا ٹیسٹنگ کی مجموعی استعداد 3500 یومیہ ہے۔ انصاف ڈاکٹرز فورم نے گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان کو کورونا وائرس اور پلازما عطیہ کرنے کی مہم کا پیٹرن ان چیف مقرر کیا۔ انصاف ڈاکٹرز فورم کی وفد نے گورنر کو کورونا وائرس اور کورونا سے صحتیاب افراد کی پلازما عطیہ کرنے کی مہم سے متعلق معلومات فراہم کی۔ پشاور میں میڈیا بریفنگ کے دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات اجمل وزیر نے کہا کہ حکومت نے صوبے میں آکسیجن سلنڈرز کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف انسداد ذخیرہ اندوزی آرڈیننس کے تحت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نجی ہسپتالوں میں کورونا کے مریضوں سے لی جانے والی فیسوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا سے مزید 32 افراد جاں بحق ہونے سے صوبے میں اموات کی تعداد 707 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صوبے کے مختلف علاقوں میں مزید 459 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جس سے صوبے میں متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 18,472 ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 153 افراد کے ٹیسٹ ریزلٹس نیگیٹو آئے ہیں۔ اب تک صوبے میں صحتیاب ہونے والے افراد کی کل تعداد 4,692 ہے۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ اور پاکستان میں کرونا کیسز کا گراف تیزی سے بلند ہونے لگا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5,248 افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 97 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,44,478 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 2,729 ہے۔ 53,721 افراد صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد پنجاب میں ہے، جہاں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 54,138، جبکہ سندھ میں مجموعی تعداد 53,805 ہو گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 8,569، بلوچستان میں 8,177 اور خیبر پختونخوا میں 18,013، گلگت بلتستان میں 1,129 اور آزاد کشمیر میں یہ تعداد 647 ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے پنجاب کا 22 کروڑ 40 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 3 کروڑ 37 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ ٹیکسوں کی مد میں 56 ارب روپے سے زائد کا ریلیف پیکج بھی اس بجٹ کا حصہ ہے۔ کاروباری طبقے کے ساتھ ساتھ عام آدمی کے ریلیف کے لیے بھی خصوصی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی کی صدارت میں بجٹ اجلاس کی تفصیل بتائیں گی ہما صدف اپنی اس رپورٹ میں۔ بائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت نے ایوان میں بجٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ آئندہ سال کے بجٹ میں عوام کی فلاح و بہبود کو اولویت دی گئی ہے۔ محکمہ خزانہ نے عوام کی تجاویز اور سفارشات کے نتیجے میں تعلیم، صحت اور روزگار سمیت 11 مختلف شعبہ جات کو ترجیحی بنیادوں پر فنڈز مختص کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کورونا وبا سے متاثر معیشت کی بحالی کے لیے 56.5 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس ریلیف پیکج قابل ذکر ہے۔ صحت انصاف کارڈ پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے اس سال بھی 12 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 284 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے صحت کے شعبے پر خاصا دباؤ ہے۔ آئندہ مالی سال میں حکومت نے اس وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے مجموعی طور پر 13 ارب روپے رکھے ہیں اور ادویات کی خریداری کا بجٹ کو 3 ارب روپے سے بڑھا کر 26 ارب پر لے گئی ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ نے بتایا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی 2 ایک ساتھ میں کی جا سکے گی اور 30 ستمبر 2020 تک مکمل ٹیکس کی ادائیگی کی صورت میں ٹیکس دہندگان کو 5% کی بجائے 10% ریبیٹ دیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال میں اسٹیمپ ڈیوٹی کی موجودہ شرح کو 5% سے کم کر کے 1% کرنے کی بھی تجویز ہے، جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو فروغ ملے گا۔ زراعت کے شعبے میں ٹڈی دل اور دیگر قدرتی اور ناگہانی آفات سے نمٹنے کے لیے مجموعی طور پر 4 ارب روپے سے زائد رقم مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ زراعت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 31 ارب 73 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ اس بجٹ سے کھادوں اور بیجوں پر سبسڈیز اور فارم میکنائزیشن، واٹر کورسز کی لائننگ اور شمسی توانائی سے چلنے والے ڈرپ اینڈ اریگیشن اسپرنکلر سسٹم جیسے منصوبے بھی مکمل کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے زراعت ایمرجنسی پروگرام برائے زرعی اجناس کی پیداوار میں اضافے کے لیے 1 ارب 68 کروڑ روپیز مختص کیے گئے ہیں۔ گندم کی خریداری کے لیے
आइंदा माली साल में फूड डिपार्टमेंट के लिए 331 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के शोबे की अहमियत को सामने रखते हुए मजमूई तौर पर 391 अरब रुपए से जायद की रकम मुख्तस की गई है। 5 लाख से जायद तलबा को वज़ाइफ और मुफ्त दरसी कुतुब की फराहमी के लिए बजट में फंड मुख्तस किए गए हैं। सूबे पंजाब में सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए नया पाकिस्तान मंजिल आसान का दूसरा मरहला शुरू किया जा रहा है। महकमा आबपाशी को 37 अरब 40 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की जा रही है, जिससे आबपाशी के अहम मंसूबों की बहाली और तोसी मुमकिन हो सकेगी। अगले साल के बजट में महकमा जंगलात के लिए मजमूई तौर पर 8 अरब 73 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जबकि सूबे में सियाहत के फरोग के लिए 2 अरब रुपए की खसूसी रकम मुख्तस की जा रही है। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमा बख्श ने अपनी बजट तकरीर में तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, जिले इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1122, पाक फौज के जवानों और मीडिया रिपोर्टर्स समेत कोविड-19 के सदेबाब के लिए कोशिशें करने वाले तमाम अफराद को खिराज तहसीन पेश किया। इससे पहले वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा माली साल 2020-21 के बजट की तजावीज़ और ज़िमनी बजट साल 2019-20 की मंजूरी दी गई। काबीना इजलास के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। मुलाकात में आइंदा माली साल के बजट इजलास और आम आदमी को रिलीफ की फराहमी के लिए बजट में दी गई मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सूबाई वज़रा और अरकान असेंबली ने मौजूदा हालात में बजट को इंतहाई मतवाज़न और आवाम दोस्त करार देते हुए ये कहा है कि बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के साथ साथ कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए भी इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। के लिए छोटे दर्जे के ताजर, दरमियाने दर्जे के ताजर, उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। और इन हालात के अंदर भी जब कोरोना वायरस, फिर उसके अलावा टिड्डी दिल, फिर आने वाला जो सैलाब है एक्सपेक्टेड, कि जो महकमा मौसमियात बता चुका है, इन सब की रोशनी में इतना ज़बरदस्त बजट है जिसके अंदर तकरीबन 58 अरब रुपए की टैक्स रिलीफ किया गया है ताजरों को। फिर उसके अलावा तालीम का बजट पिछले साल की निस्बत ज़्यादा रखा गया है, सेहत का बजट पिछले साल की निस्बत ज़्यादा रखा गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत की है और एक ऐसा बजट दिया है जिसमें ये कोशिश की है कि जो रिलीफ दी जा सके मैक्सिमम छोटे बिजनेसेस को, वो भी दी है। और उसके बावजूद जो उसका हजम है एडीपी का, वो गुज़िश्ता साल से थोड़ा बढ़ाने में कामयाब हो गए। मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। इसमें इन्होंने मतवाज़न बजट पेश किया, जिसमें जो हमारा एडीपी है वो पिछले साल की निस्बत 5 अरब ज़्यादा है। पंजाब की तारीख साज बजट है जो कि टैक्स फ्री भी है, इस पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इसके साथ साथ जितने मुश्किल तरीन हालात के कोविड की वजह से जो माली मामला थे उनको भी मद्देनजर रखते हुए ये बजट बड़ा ज़बरदस्त बनाया गया। इस हालात में जो पंजाब गवर्नमेंट ने बजट दिया है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी आज तक इस तरह का बजट नहीं पेश किया गया। मनसूबाबंदी और तरक्यात के वजीर असद उमर ने कौमी असम्बली को बताया कि कोरोना के फैलने से पहले इस साल फरवरी तक टैक्स की वसूली में तकरीबन 17% का वाज़ेह इजाफा हुआ है। कौमी असम्बली के इजलास की तफसील मियां मोहम्मद समी से। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के दिए गए दादोशुमार को मुस्तरद करते हुए मनसूबाबंदी और तरक्यात के वजीर असद उमर ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 2 गुना हो गई है। उन्होंने कहा कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में भी 50% का इजाफा हुआ है, जिसने हमारे रुपए की कदर को मुस्तहकम किया। उन्होंने कहा कि इस साल मार्च तक करंट अकाउंट खसारे में 33% कमी वाक़ हुई है। असद उमर ने कहा कि द्यामिर बादशाह, दासू और महमद डैमो समेत हाइडल के 3 बड़े मंसूबों पर एक साथ काम शुरू करने का सेहरा भी मौजूदा हुकूमत को जाता है। इस साल जो हायर एजुकेशन कमीशन ने अपनी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किया है, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती अखराजात हैं। 28 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे किए हैं हायर एजुकेशन कमीशन ने। दूसरी चीज सेहत के डायरेक्ट उस मंसूबे जो हैं वो तो 14 अरब रुपए के हैं। उसके अलावा
ہم نے 50 अरब रुपए के मंसूबे रखे हैं मैचिंग ग्रांट के ऊपर सूबों से, तमाम सूबों से बात हो गई है। हुकूमती बेंचों से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली ने बजट तजावीज को सराहते हुए कहा कि कोरोना की मुश्किल सूरत हाल में मौजूदा बजट एक बेहतरीन बजट है। इन हालात में इससे बेहतर बजट पेश करना मुमकिन नहीं था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसफ ने हुकूमत की बजट तजावीज पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की वजह से मईशत बुरी तरह मुतासर हुई है। उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालबा करते हुए कहा कि कोरोना की वबा से निमटने के लिए ज्यादा वसाइल मुख्तस किए जाएं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं, जरूरी है, इनकी जरूरत है। दूसरा, उन डॉक्टरों का, उन नर्सेस का, पैरामेडिक्स का, एम्बुलेंस वालों का, पुलिस का, उनका ख्याल करें। अपोजिशन बेंचों से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली ने बजट तजावीज पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत की माशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क में महंगाई में इजाफा हुआ है, जिससे गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद बढ़ गई है। इजलास में कौमी असम्बली के साबिक रुकन दोस्त मोहम्मद फैजी की वफात पर फातिहा खानी हुई। कौमी असम्बली का इजलास मंगल की शाम 4 बजे तक मुलतवी हो गया। मियां मोहम्मद समी, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली के इजलास के बाद कुछ बात करते हैं सेनेट इजलास की। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इंसदाद मुनशियात के वजीर आजम खान सवाती ने कहा है कि गैर मामूली सूरत हाल में मतवाजन बजट पेश किया गया है। हुकूमत ने वादे के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तमाम माफियाज के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इजलास की तफसीलात बता रहे हैं राना शहजादुल इस्लाम। सेनेट में वफाकी बजट पर बहस का बाकायदा आगाज करते हुए पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि कोरोना वबा से पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल में वफाकी बजट को क्राइसिस बजट होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बजट में सेहत के शोबे और टिड्डी दल की रोकथाम के लिए मजीद इकदाम तजवीज किए जाएं। वफाकी वजीर आजम खान सवाती ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने जब हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान को कौम ने एहतसाब के नारे पर इक़्तिदार दिया। बिला इम्तियाज एहतसाब का अमल यकीनी बनाया जाएगा। आजम खान सवाती ने कहा कि गुज़श्ता 10 सालों में पहली बार वफाकी बजट में आमदन और अखराजात बराबर हुए हैं। सेनेट में कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि कोरोना वबा से निपटने के लिए महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान की मुंतखब क़यादत ने बरवक्त और तसलसल के साथ अहम फैसले किए। मईशत की बहाली मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 20 अरब से 3 अरब तक, उसमें कमी लाई गई। इंपोर्ट को कम किया गया, एक्सपोर्ट में ग्रोथ नजर आई। 17% टैक्सेस के रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा हुआ। नॉन टैक्स रेवेन्यू 134% उसमें इजाफा हुआ। तमाम काम करने के लिए मुश्किल और बरवक्त इक़दाम किए गए। बजट बहस में हिस्सा लेते हुए सेनेटर अब्दुल कयूम और सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 10% बढ़ाई जाए, पेंशन में भी इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि इंसानी वसाइल की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर तवज्जो दी जाए और काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों पर भी काम शुरू किया जाए। सेनेट का इजलास बुध शाम 4 बजे तक मुलतवी हो गया। राना शहजादुल इस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा मईशत की रवानी के लिए हुकूमत का सबसे अहम प्रोजेक्ट है, जिससे कई सनतों को फरोग मिलेगा। इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत कम आमदन वाले अफराद के मकानात की तामीर और तामीराती शोबे के फरोग के लिए उठाए गए इक़दाम पर पेशरफ्त के जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने तामीराती शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद तामीरात के शोबे को फरोग देकर कम आमदनी वाले अफराद को घरों की फराहमी भी यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इससे मजदूर तबके और गरीब अफराद को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। उन्होंने कहा हुकूमत नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे की तकमील के लिए 30 अरब रुपए की मुआवनत फराहम कर रही है ताकि हर एक शख्स को ज़ाती छत मिल सके। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कमर्शियल बैंकों के साथ मुशावरत से थिंक टैंक की सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाए ताकि नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत घरों की तामीर के लिए माली वसाइल को यकीनी बनाया जा सके। चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर ने बताया कि तामीरात के शोबे में मरात के हवाले से ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन की फीसों में खासर ख्वाह कमी लाई गई है और इसका इत्तलाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी कर दिया गया है। इसके अलावा नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से डेवलपर्स और बिल्डर्स की सहूलत का खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है ताकि वो हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात का फायदा उठा सकें। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म मुल्क के मुआशी हब कराची की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं और यही वजह है कि आइंदा माली साल के वफाकी बजट में वफाक की जानिब से जारी कराची के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए खतीर रकम रखी गई है। तफसीलात ज़ीशान अहमद खान की इस रिपोर्ट में।
कराची की तरक्की के लिए वजीर आजम इमरान खान की खुसूसी दिलचस्पी के पेश नज़र आइंदा माली साल के लिए बजट में ग्रीन लाइन मेट्रो बस और दीगर मनसूबों के लिए खती रकम मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। ग्रीन लाइन मेट्रो बस से लोगों को सफर की बेहतर सहूलत की फराहमी के लिए वफाक की जानिब से जारी ग्रीन लाइन मनसूबे के लिए आइंदा माली साल के बजट में मजीद 7 अरब 95 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। सुल्तानी टाउन से टावर तक 25 किलोमीटर से तवील ग्रीन लाइन मनसूबे की तकमील से न सिर्फ आवाम के लिए रोजगार के वसी मौके पैदा होंगे बल्कि कराची के अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात भी मैसर आएंगी। जहाँ 1 घंटे में गोली मार के गुरुबना तक पहुँचते हैं रश की वजह से, अगर ये चल गया तो लोगों के लिए आवाम के लिए तो बिल्कुल सहूलत होगा। सस्ती सवारी भी मिल जाएगी, किसी गरीब आवाम के भी लिए इंशाल्लाह कुछ हो जाएगा। ग्रीन लाइन खोलते हैं, पानी का मसला हल करेगा सर, उससे भी कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा सर। उम्मीद है कि जल्दी ये खुल जाएगी और जो रोड में ट्रैफिक जाम होती है और परेशानी होती है उससे काफी हद तक कमी आ जाएगी। जैसा बैठेगा आदमी वैसा ही उतर जाएगा। फायदा तो होएगा, सहूलत हो जाएगी। जैसे गाड़ियों में धक्के खा रहे वैसे धक्के नहीं खाएंगे। कराची पैकेज के तहत जिना एवेन्यू फ्लाई ओवर के लिए भी 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। कराची में पानी की फराहमी के मंसूबे ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई के लिए बजट में 2 अरब 35 करोड़ रुपए की तजवीज़ रखी गई है, जबकि सनदी ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1 अरब रुपए की तजवीज़ रखी गई है। हुकूमत ने बजट में कराची सर्कुलर रेलवे फेज 2 के लिए भी 30 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी है। वफाकी हुकूमत की संजीदा काविशों की बदौलत कराची में जारी तरक्याती कामों की तकमील से न सिर्फ आवाम को फायदा हासिल होगा बल्कि रोजगार के मौके भी मिलेंगे। शाह अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कश्मीर के लोग जिस कदर भारत से आत्मतनफ्फर हैं पिछली 7 दहाइयों में नहीं थे। इस्लामाबाद में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातें करते हुए वजीर खारिजा ने कहा कि भारत वजीर दिफा आज़ाद कश्मीर के अवाम से अपने गैर इंसानी इक़दामात पर राय ले सकते हैं। अगर आप पे हिम्मत है तो आइए, हम आपको दावत देते हैं, आज़ाद कश्मीर में आइए और देख लें कि 5 अगस्त के इक़दामात को कोई कश्मीरी वो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है या नहीं। और अगर आप में हौसला है तो फिर इमरान खान साहब को या मुझे आप इजाजत दें कि हम आए और हमें फिर श्रीनगर में एक खुली कचहरी का मौका इनायत करें और हम भी कश्मीर की आवाम और कश्मीर की क़यादत से मुखातिब होते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो इक़दामात दिल्ली की सरकार ने उठाए हैं क्या कश्मीरियों को कबूल है या वो उनको मुस्तरद करते हैं। एक सवाल के जवाब में वजीर खारिजा ने कहा कि सलामती काउंसिल की रुकनीत के लिए पाकिस्तान भी लॉबिंग कर रहा है, लेकिन हम सफारती इक़दार को मलहूज़ खातिर रखते हुए अपना लाहे अमल मुरतब करेंगे। भारत ने सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने के लिए जोड़ तोड़ तेज कर दिया है। 2 साल के लिए काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब 17 जून को हो रहा है। मौजूदा हालात के तनाजुर में भारत का इंतखाब दरअसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की हिमायत होगा। क्या दुनिया भारत के सैफरान टेररिज्म और हिंदू दहशतगर्दी को नजरअंदाज कर देगी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले और हिंदू इंतहा पसंदी को फरोग देने वाले नाम निहाद सेक्युलर भारत को सलामती के ज़ामिन इदारे का रुकन मुंतखब कर लेगी, जो हिंदू रियासत की मजबूती के लिए अक़लियतों को खत्म कर रहा है। क्या भारत का सलामती काउंसिल में गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर इंतखाब करना मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जे को जायज करार देना नहीं होगा? भारत को ऐसे वक्त में सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब करना कतन मुनासिब नहीं होगा जब 9 लाख से जायद भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किए हुए है। सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी, जिसमें कश्मीर में इस्तिस्बाबे राय का कहा गया है, मकबूजा कश्मीर में तारीख का बदतरीन लॉकडाउन जो 5 अगस्त 2019 से अब तक जारी है, मकबूजा कश्मीर में बदतरीन पाबंदियां, इंटरनेट की बंदिश, कर्फ्यू का नफाज और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां ही नहीं बल्कि 1 लाख से जायद लोगों के कत्ल का जिम्मेदार भी मोदी हुकूमत है। खुद को सेक्युलर रियासत कहलाने वाले भारत ने न सिर्फ नेपाल, चीन और दूसरे हमसायों के साथ सरहदी तनाज़ात खड़े कर रखे हैं बल्कि कंट्रोल लाइन पर खिलाफ वर्जियों का न खत्म होने वाला सिलसिला भी जारी कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को मकबूजा कश्मीर में आज़ादाना नक़्लो हरकत की इजाज़त न देना
اور ہمسایہ ممالک کو غیر مستحکم کرنے کی مکروہ سازشیں کرنا بھارتی انتہا پسند حکومت کی روش رہی ہے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن کی کارروائیاں اور اعتراف اس ضمن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نریندر مودی کی دہشت گردانہ سوچ سمجھوتا ایکسپریس جیسے واقعات سے بھی منکشف ہوتی ہے۔ ایسی سوچ کی حامل حکومت کا سلامتی کونسل میں غیر مستقل رکن کے طور پر انتخاب خطے میں بدامنی کو فروغ دینے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ بات کشمیر کی کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی، تحریک حریت جموں کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی اور غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنما مسرت عالم بٹ کشمیر پر بھارت کے جابرانہ قبضے کے خلاف مزاحمت کی علامت اور روشنی کے مینار کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے تعاون سے سری نگر میں صحافیوں کے ایک گروپ کی طرف سے کیے گئے سروے کے مطابق تینوں رہنما اپنی بہادری اور بے باکی کی وجہ سے ریاستی عوام کے دلوں میں رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر قسم کی آزمائش اور مشکل حالات میں آزادی کا پرچم سربلند رکھا۔ سروے میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت ان تینوں بلند پایا شخصیات کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ اور مایوس ہے، کیونکہ تنازع کشمیر پر ان کے دو ٹوک موقف کی وجہ سے عوام انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لوگوں کے انٹرویوز کے مطابق سید علی گیلانی، محمد اشرف صحرائی اور مسرت عالم بٹ کی قائدانہ جدوجہد کشمیر کی جدوجہد آزادی کی تاریخ میں سنہری باب بنا رہے گا۔ مسرت عالم بٹ 30 سال سے زیادہ عرصے سے بھارتی جیلوں اور عقوبت خانوں میں نظر بند رہے ہیں۔ انہیں آخری مرتبہ اس وقت گرفتار کیا گیا جب اپریل 2015 میں انہوں نے سری نگر میں ریلی کے دوران جیوے جیوے پاکستان، تیری جان میری جان، پاکستان پاکستان کے نعرے لگائے تھے۔ میری جان میری جان پاکستان پاکستان، پاکستان کا کیا پیغام، تیرا میرا کیا ارمان، پاکستان پاکستان، میری جان میری جان پاکستان پاکستان، پاکستان کا کیا پیغام، تیرا میرا کیا ارمان، پاکستان پاکستان، میری جان میری جان۔ سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے سری نگر میں صحافیوں سے ملاقات کے دوران کہا کہ بھارت کی جانب سے اعلان کردہ نئی میڈیا پالیسی علاقے میں صحافت اور پریس کی آزادی پر کھلا حملہ ہے۔ پروفیسر نے کہا کہ کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے، جسے ریاستی عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکاری ملازمتوں میں بھرتی کے لیے بھارتی حکومت کی نئی پالیسی کے خلاف جموں میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ہم انصاف چاہتے ہیں جیسے نعرے درج تھے۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کی۔ بینچ کے رکن جسٹس مقبول باقر نے وفاق کے وکیل پر واضح کیا کہ انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ متعلقہ جج نے اہلیہ کو جائیداد خریدنے کے لیے رقم دی۔ وفاق کا موقف ہے کہ جوڈیشل کونسل نوٹس کے اجرا کے بعد اس کی کارروائی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ وفاق کے وکیل بیرسٹر فروغ نسیم نے موقف اختیار کیا کہ سروس آف پاکستان کے تحت اہلیہ کے اثاثے آمدن سے زائد ہوں تو معزز جج کو وضاحت دینا ہوتی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل ٹیکس گوشواروں کا جائزہ لے سکتی ہے۔ متعلقہ معزز جج اور ان کی اہلیہ نے گوشواروں میں لندن جائیدادیں ظاہر نہیں کی۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ آئین غیر جانبدار ہے۔ آئین کے آرٹیکل 209 میں اہلیہ کو جج کے زیر کفالت یا خود کفیل ظاہر کرنا بلا جواز ہے۔ کچھ بات کریں گے کورونا صورتحال کی۔ دنیا بھر میں اب تک 80,35,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,36,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اب تک 41 لاکھ سے زائد کورونا کے مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 21,66,000 سے بڑھ گئی ہے۔ 1,18,000 کے قریب ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں۔ برازیل متاثرین اور اموات کی تعداد کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آ چکا ہے۔
ٹڈی دل کی موجودہ صورتحال کی بات کریں تو آپ کو آگاہ کریں کہ اس وقت ملک کے 40 اضلاع میں ٹڈی دل موجود ہے۔ ٹڈی دل سے بلوچستان کے 29، خیبر پختونخوا کے 8 اور سندھ کے 3 اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے متاثر ہونے والے اضلاع میں خزار، آوران، نوشکی، چاغی، گوادر، اتھل، کیچ، پنجگور، جاوران، وشک اور کوئٹہ اور دیگر اضلاع شامل ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانگ، شمالی اور جنوبی وزیرستان، لکی مروت، کرم اور اکسئی اور خیبر کے اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں صحت SOPs کی 10,557 سے زائد خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ اس دوران 1,252 سے زائد مارکیٹوں، دکانوں، 12 صنعتی یونٹس اور 1,148 ٹرانسپورٹرز کو سیل یا جرمانہ کیا گیا ہے۔ مظفر آباد میں 2 لاکھ آبادی مکمل لاک ڈاؤن میں ہے، جبکہ اسلام آباد کے 2 مختلف حصوں میں لگ بھگ 50,000 اور 1,200 سے زائد آبادی مکمل بند ہے۔ سندھ کے گورنر اور وزیر اعلیٰ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کریں اور خود کو اور اپنے پیاروں کو اس وبا سے محفوظ رکھیں۔ تفصیل ذیشان احمد خان سے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صوبے میں کورونا وائرس کے 9,080 ٹیسٹ کیے گئے، جس کے نتیجے میں 1,776 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ آج 2,417 مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو چلے گئے، جبکہ اب تک صوبے میں 28,023 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کراچی کے علاقے زینب مارکیٹ میں ٹائیگر فورس کی جانب سے ماسک تقسیم کرنے کی مہم میں شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ صوبے میں ٹائیگر فورس کی تعداد 1,56,000 تک پہنچ گئی ہے اور یہ صوبے میں کورونا کے حوالے سے آگاہی مہم میں پیش ہے۔ جو والنٹیئر ٹائیگر فورس کے آئے ہیں انہیں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ماسک پہنے بغیر مارکیٹ میں آ رہے ہیں انہیں ماسک سپلائی کریں، اور جب تک عوام سوشل ڈسٹینسنگ کے پروگرام پر یا SOPs پر عمل نہیں کریں گے، جس میں دکاندار ہوں، چاہے گاہک ہوں، چاہے ٹرانسپورٹرز ہوں یا مسافر ہوں، اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو یہ کسی حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس پر قابو پا سکے۔ ضلع سانگڑ کے مختلف اسپتالوں میں گورنر سندھ عمران اسماعیل کی ہدایت پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹروں اور طبی عملے میں حفاظتی سازو سامان تقسیم کیا گیا۔ حفاظتی سازو سامان میں PPE کٹس، ماسک اور سینیٹائزرز کے متعدد کارٹنز شامل ہیں۔ حفاظتی سازو سامان سول اسپتال سانگڑ، شہداد پور انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز تعلقہ ٹنڈو آدم اور سنجھوروں میں اسپتال انتظامیہ کے حوالے کیے گئے۔ اور کورونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے اسسٹنٹ کمشنر محمد عبداللہ محمود نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سرکاری دفاتر میں کام کرنے والوں کی صحت انتظامیہ کی ترجیح ہے اور اس حوالے سے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تمام لوگ جو اس مشکل حالات میں گورنمنٹ کے ساتھ مینجمنٹ میں ہیلپ کر رہے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس میں ہیلپ کر رہے ہیں، جس میں ہمارا اپنا نیشنل نیوز PTV شامل ہے، اور باقی تمام گورنمنٹ کے بلڈنگز اور ادارے، ان کے ساتھ ہم جو ہے ڈس انفیکشن کر رہے ہیں، اویئرنیس کر رہے ہیں، اور تمام ممکن جو مدد کی جا سکتی ہے وہ ہم ان کی کر رہے ہیں، اور ہم اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ ہیں۔ موسم کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا، تاہم کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم خشک اور جزوی ابر آلود رہے گا۔ اب ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ السلام علیکم، سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔
नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के पहले ऑनलाइन फिटनेस एंड शैडो बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। टूर्नामेंट में मुल्क भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ऑनलाइन फिटनेस एंड शैडो बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 3 कैटेगरीज अंडर 15, अंडर 25 और अंडर 40 के मुकाबले जारी हैं। कोरोना वायरस के बायस महदूद सरगर्मियों की वजह से मुनक्किद होने वाला ऑनलाइन टूर्नामेंट 7 रोज तक जारी रहेगा। जीतने वाले खिलाड़ियों के ऐलान बॉक्सिंग फेडरेशन के तैनात करदा रेफरीज और ऑफिशियल्स करेंगे। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल नासिर जंग ने पीटीवी को बताया कि इवेंट के हवाले से बॉक्सर्स में जोशो खरोश पाया जाता है। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के इस इक़दाम को तमाम डिपार्टमेंट और हमारी सूबाई एसोसिएशन और दूसरी एसोसिएशन ने बहुत सराहा है और इस इक़दाम का वाहिद मकसद है कि अपने खिलाड़ियों और ऑफिशियल को एक्टिव रखना और कोविड-19 के एनवायरनमेंट में महफूज तरीके से में रहते हुए अपने आप को फिट रखें और एक्सरसाइज में जारी रखें ताकि आइंदा आने वाले कौमी और बैन अवी मुकाबलों में भरपूर तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी 5 साला हिकमत अमली जारी कर दी है। इसका मकसद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दुनिया भर में एक बुलंद पाया और मोतबर क्रिकेट बोर्ड के तौर पर सरफराज करना है। हमारी कौम को मुतासिर और मुत्तहिद करने का 5 साला मंसूबा के उन्वान से मौजूद इस दस्तावेज में स्ट्रेटेजिक और कारपोरेट मकासद बयान किए गए हैं, जिसमें मर्दों, खवातीन और मुख्तलिफ ग्रुप पर मुश्तमिल कौमी टीमों की तरक्की और निचली सतह पर खेल की पजराई के लिए एक मुनज़्ज़म ढांचा और वाज़ेह लाहे अमल पेश किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान का कहना है कि एक वाज़ेह, दिलचस्प और काबिल हुसूल रोड मैप की तैयारी बहुत अहम थी ताकि पीसीबी का अमला ही नहीं बल्कि शायकीन और इसके स्टेक होल्डर्स भी हमारी समत का वाज़ेह तयन कर सके। कौमी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मोहम्मद हफीज का कहना है कि कोरोना वबा की वजह से क्रिकेट में जो भी तब्दीली आई उसे कबूल करना होगा। दौरा इंग्लैंड में दुआ है इस वबा से हर कोई महफूज रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि दौरा इंग्लैंड पर अगर टेस्ट क्रिकेट के लिए कहा गया तो वो जरूर खेलेंगे क्योंकि ये दौरा अपनी नौयत का मुख्तलिफ दौरा है। उन्होंने कहा कि अभी क्रिकेट नहीं छोड़ रहा, परफॉर्म करता रहूंगा तो खेलता रहूंगा। जर्मन फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। ऑग्सबर्ग ने मेंस को 1 गोल से शिकस्त दे दी। शाल्के और बायर लेवरकुसेन के दरमियान मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर खत्म हुआ। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मेंस में खेले गए मैच में ऑग्सबर्ग ने मेजबान एफसी मेंस को 1 गोल से हरा दिया। मेंस की टीम गोल करने में नाकाम रही। मैच का वाहिद फैसला कुल खेलों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बहुत शुक्रिया अनीस, और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। अयाज असलम और नाजिया कमल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। ताकत जिसके दिल में मौजूद हो, वो चाहे किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है। जज्बात में आके रवाना तो हो गया है, लेकिन वापस आता भी है या नहीं? हम आ गए हैं भाई। बस अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह। मैं तैयार हूँ उस्ताद आज़म, अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर होगा। भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना दूंगा। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा, और कौन? जगह जगह से पुलिस के बारे में शिकायतें आती हैं कि वो जुल्म करते हैं, वो ज्यादतियां करते हैं और वो मोर लॉयल देन द किंग का मुजाहरा करते हैं।
غासिब भारत ने कश्मीरी आवाम की हक खुदइरादियत की जद्दोजहद को दबाने के लिए अपनी 10 लाख फोर्सेस कश्मीरियों पर मुसल्लत कर रखी हैं, जिसके नतीजे में मकबूजा जम्मू और कश्मीर दुनिया का सबसे ज्यादा फौजी तैनाती वाला खित्ता बन चुका है। ये बेलगाम फौजी न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ बदतरीन जराइम का इर्तकाब कर रहे हैं, बल्कि इतने बड़े पैमाने पर फौजी मौजूदगी की वजह से कश्मीरी आवाम की मुआशी और मुआशरती जिंदगी समेत हर शोबा जिंदगी पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। बस्तियों, जंगलात, चरागाहों समेत हर कदम पर फौजी कैंपों और भारी असलहे और गोला बारूद की मौजूदगी की वजह से कश्मीर बारूद का ढेर बन चुका है। काबिज भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के जिन सियाहती मकामात को कश्मीरियों के लिए मौत के फंदे में तब्दील कर दिया है, उनमें तौसा मैदान भी शामिल है। तौसा मैदान 1964 से 2014 तक भारतीय फौज के जेर कब्जा रहा और इस मकाम को फायरिंग रेंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। अगरचे शदीद अवामी एहतजाज के बाद भारतीय फौजी इस इलाके को खाली करने पर मजबूर हो गए, ताहम काबिज भारतीय फोर्सेस ने यहाँ पर बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, जिनके फटने से अब तक 65 कश्मीरी शहीद और सैकड़ों माजूर हो चुके हैं। नवी जमात का तालिब इल्म 15 साला मोहम्मद आसिफ पानी भारतीय फौज की बिछाई हुई बारूदी सुरंगों का ताज़ा निशाना बना। शहीद बच्चे के रिश्तेदारों का कहना है कि इलाके के चंद बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे कि इस दौरान धमाका हुआ, जिसके नतीजे में मोहम्मद आसिफ शहीद और कई दूसरे बच्चे जख्मी हो गए। ये बोल रहा था मुझे घूमने जाना है, ईद के बाद मुझे घूमने जाना है। हमें नहीं था, हम उसको जाने ही नहीं देते थे क्योंकि हालात वहाँ पे खराब थे। इसके बाद जब ये तीसरी कल वहाँ गया घूमने के लिए, वहाँ ये सब 5 लड़के थे, 3 एज के हैं, ये 5 खेल रहे थे वहाँ पे, जिस वजह से ये ब्लास्ट हुआ वहाँ पे। इनके क्या जाता है हमारे मरने से, कुछ नहीं जाता है इनको। ये छोड़ो, मेरा भाई इतने सारे वहाँ पे हो गए शहीद, इतने सारे वहाँ पे मर गए, कोई वहाँ का केयर कोई कर रहा है? लवाहिकीन का कहना है कि तौसा मैदान को अगरचे हुक्काम सियाहती मकाम करार दे रहे हैं, ताहम ये मौत का फंदा है। जो ओल्ड आर्टिलरी एरिया है वहाँ पहले आर्मी हुआ करती थी तौस मैदान एरिया में, लेकिन फिर आर्मी उठी वहाँ, तो उस एरिया को सैनिटाइज नहीं किया गया पूरी तरह से। लोगों को ये बताया गया है, मीडिया को ये बताया गया है, और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो हाईलाइट करता है कि तौस मैदान जो है वो एक अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन लोगों को अभी भी खबर नहीं है कि ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये एक कब्रिस्तान है जहाँ जाने के बाद लोग वापस आएंगे या नहीं आएंगे ये कोई गारंटी नहीं रहती है। तौसा मैदान जो वस्ती जिला बडगाम में वाक़ है, में हर तरफ गोला बारूद बिखरा पड़ा है, जिसके फटने से गिरदोनवाह में रहने वाले देहात के कई लोग शहीद और जख्मी हो चुके हैं, जिनमें मासूम बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन शामिल हैं। ये भाई बहन दोनों खेल रहे थे, स्कूल उस दिन ये नहीं गए, मंडे था शायद 19 मई 2014 का दिन था। ये भाई बहन खेल रहे थे, इनने पता नहीं कहाँ से हाथ में आ गए, घर पहुँचे, वहाँ पे घर के सामने इनका ये ब्लास्ट हो गया। जिम्मेदार करा मजदूर मशक कराई थी, सुबह तम साथ तौस मैदान गुपनान तम आर्मी त्रा तम टॉप तम सारी फटान जिम्मे तल खोट हंग तम तो खोट हंग मा खोट तरी कोई बुची से कई रोसन अंदर तम बुची कई तो तम कॉलेज में गदे कई बोन से नाड़ी कई पता से नाड़ी कई मसूद से मसीत तो उसमें 4 बजे से आर्मी करान फायरिंग मे शाम लश कहीं तक तील वील मे तील कहीं बह लश कड़ने दोदलिस गोडस तक दोब तथ दोबस मज आर्मी वालों त्रोम ग्रेनेड मे बासाव ना अत मज ग्रेनेड कह मे लो योर तब्र दब तब्र तह तब्र बुझे यह होश गो अलवत। अगर आर्मी आसे न फौज आसे न बारूद त्रोमुत मा गई आर्मी हज गलती, गवर्नमेंट गलती, बे क्या। काबिज भारतीय फौज की बिछाई हुई सुरंगों का निशाना बनने वाले गमजदा खानदान और इसके नतीजे में माजूर होने वाले अफराद इंतहाई कर्बनाक जिंदगी गुजार रहे हैं। कश्मीरी